ਚੈਪਟਰ 4th ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ 10+2 ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ 6 ਪਾਰਟਸ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਚੈਪਟਰ 3 ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਅਗਲਾ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ। ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ A ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਪਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ A11 A12 A13 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਕੇਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਕੇਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਸਕੇਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਮਤਲਬ 1/1 ਦੀ 2/2 ਦੀ 3/3 ਦੀ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਸਕੇਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਊਗਾ ਕੀ? ਆਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ A ਹੈ, ਇਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਇਹ ਹੋਊਗਾ। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ। ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ A11 ਹੈ A22 ਹੈ A33 ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਕੇਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਅਸਾਈਨ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵੈਲਿਊ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ A 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਾਤਾ, ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ। ਉਹ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗੀ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ K ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ A। ਇਹ 'ਚ ਉਲਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ A ਦੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੂੰ ਮੋਡੂਲਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਮੋਡ ਆਫ A ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ A, ਨਾਟ। ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ A। ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿਹਦਾ? ਸਕੇਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਨਿਕਲੂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਸਕੇਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਆਪਾਂ 3 ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ 10+2 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1/1 2/2 3/3 ਇਹ 3 ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਕੇਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ A ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, ਸਕੇਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ A, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ A ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਵੀ ਉਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ A ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, 1/1 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ A ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਇੱਕੋ ਐਲੀਮੈਂਟ 2, ਤਾਂ A ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? 2। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਹੋਵੇ? 2/2 ਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ 2/2 ਦੀ ਹੋਵੇ, 2/2 ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। A11 A12 A21 A22 ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕੱਢਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਆਹ ਇੱਕ ਐਰੋ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ। A11 ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗਨਲ ਐਰੋ ਹੈ, A11 ਦੀ ਗੁਣਾ ਆਪਾਂ A22 ਨਾਲ ਕਰਤੀ, ਮਾਈਨਸ A21 ਦੀ ਗੁਣਾ ਆਪਾਂ A12 ਨਾਲ ਕਰਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਆਊਗੀ ਉਹ ਇੱਕ K ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ K ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਅਸਾਈਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਅਸਾਈਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹ K ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਉਹੀ A ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਉਲਝਾ ਲਿਆ। ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਲਝਾਉਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ 2 3 6 7। A ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਦੀ ਗੁਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, 2 ਗੁਣਾ 7 14, ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਈਨਸ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਗੁਣਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ, 6 ਦੀ ਗੁਣਾ -3 ਨਾਲ, ਮਾਈਨਸ ਦੇ 18। ਇੱਥੇ 2 ਵਾਰੀ ਮਾਈਨਸ ਕਿਵੇਂ ਆਈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। 14 ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ 18, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? 32 ਆ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ 2/2 ਦੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
वो तुहाडे समझ आ गया होवेगा। हुण चलदे आ 3/3 ਵੱਲ। जे ये तरीका समझ आ गया समझ लो तुहाडा डिटरमिनेंट हो गया, तो बहुत ईजी ढंग है, बहुत ही सौखा ढंग है। अगे चलते हैं। हुण ये कोई मैट्रिक्स ए है 3/3 की। डिटरमिनेंट करने लई इहनूं आपां एक्सपैंड करना पैंदा। पहलां 2/2 नूं किवें एक्सपैंड कीता आपां, इस तरीके एक्सपैंड कीता। 3/3 नूं एक्सपैंड कई तरीकों नाल कीता जा सकदा है। वो तरीके किहड़े-किहड़े ने? पहला तरीके सीख लो, फिर नाम सीख लो तरीकों के, फिर तरीके दसूँगा। आपां पहली रो नाल एक्सपैंड कर सकते हैं, दूजी रो नाल एक्सपैंड कर सकते हैं, तीजी रो नाल एक्सपैंड कर सकते हैं। 3 तरीके हो गए। पहले कॉलम नाल एक्सपैंड कर सकते हैं, दूजे कॉलम नाल एक्सपैंड कर सकते हैं, तीजे कॉलम नाल एक्सपैंड कर सकते हैं। हो गए। ये 6 तरीके ने। 6 तरीके एक सिंपल प्रिंसीपल ते खड़े ने। वो सिंपल प्रिंसीपल की है कि पहले एलीमेंट को आप पॉजिटिव लेना है, नैगेटिव पॉजिटिव अल्टरनेटिव चलणगे। हुण इत्थे पॉजिटिव सी, नैगेटिव, इस नैगेटिव का पॉजिटिव बन जू, इस नैगेटिव का की बन जू पॉजिटिव नैगेटिव, नैगेटिव तो पॉजिटिव, पॉजिटिव का नैगेटिव। जिहड़े पासे मर्जी निगाह मारो, ये साइन अल्टरनेटिव ने। चाहे तो कॉलम च निगाह मार लो, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। ये कित्थे काम आउणगे, इहदी गल आपां हुण करदे हां। पहलां आपां पहली रो की एग्जांपल लैंदे हां कि पहली रो नाल एक्सपैंड किवें होऊगा। एक्सपैंड बाय रो 1। पहली रो नाल एक्सपैंड किवें होऊगा, इस प्रिंसीपल के बेस ते। सब तो पहला आप पहला एलीमेंट ले लांगे, आह A11 ले लिया। A11 एक मिनट, मैं की कहा कि रो 1 नाल एक्सपैंड करने। पहला एलीमेंट के A11 ले लिया आप, A11। हुण A11 की सेह जिहड़े आह छड्ड दो, इधरले भी छड्ड दो, इधरले भी छड्ड दो। एक 2/2 की एक मैट्रिक्स रह गई विच, किहड़ी रह गई? A22, A23, A32, A33 ये रह गई। 2/2 की आप बाद गल करते हैं। A11 की गुणा इस मैट्रिक्स नाल होगी। A11 का साइन की लेना आपां? पॉजिटिव लेना है। हुण पहली रो नाल एक्सपैंड कर रहे हैं, पहली रो का दूजा एलीमेंट किहड़ा? A12। A12 लावांगे की? नैगेटिव। हुण A12 वेले करना की पऊगा? आ रो तो छड्डनी है, देखो हुण आ दूजा कॉलम छड्ड दांगे, रह की जाऊ A21। आ दूजा कॉलम तो छड्डा ही होया, A23, A31, A33 ये हो गया। तीसरा एलीमेंट की है? A13। पहले नाल एक्सपैंड हो गया, दूजे नाल एक्सपैंड हो गया, तीजे नाल A13। हुण A13 के अगे साइन क्या जी? पॉजिटिव। छड्डांगे कि पहली रो छड्डती, आह तीजा कॉलम छड्डता, A21, A22, A31, A32। हुण करोगे कि A11 ਇਹਦੀ ਗੁਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ 33। A22 ਦੀ ਗੁਣਾ A33 ਨਾਲ, ਮਾਈਨਸ A23 ਦੀ ਗੁਣਾ A32 ਨਾਲ, ਮਾਈਨਸ A12, A21 A33 माइनस A23 A31 प्लस A13 दी गुणा A21 A32 माइनस A22 A31। देखने तो यह गल भारी भरकम लगती होगी, मैं एक एग्जाम्पल नाल समझाउना, गल बहुत ईजी है। हुण आपां इहनूं एक्सपैंड करना है कि यह मैट्रिक्स है? नहीं, मैट्रिक्स होंदी डंडियां मुड़ियां होंदियां, ये की है? डिटरमिनेंट है।
क्योंकि तुहानूं दस्सिआ कि ए दा डिटरमीनेंट ऐ हुंदा जे एलीमेंट्स इदां दे पए होण तां ये मैट्रिक्स हुंदी है। ये डिटरमीनेंट है, इहनूं एक्सपैंड करना है। किवें एक्सपैंड करांगे, क्योंकि मैं रो 1 समझाई है, पहलां रो 1 नाल एक्सपैंड करदे हैं, फिर इसे नूं कॉलम 1 ਜਾਂ कॉलम 2 नाल भी एक्सपैंड करके दिखा दूंगा। करना की है, पहला एलीमेंट ले लो, आह 3 ले लिया, ये पॉजिटिव लेना है, आ छड्डता, आ छड्डता, 6 दी 3 नाल गुणा कीती 18 माइनस 2 दी 1 नाल कीती 2। हुण दूजा एलीमेंट आपां लेना नैगेटिव, पर नैगेटिव -5 भी अपने आप च नैगेटिव है, तो नैगेटिव नैगेटिव की हो जाना है पॉजिटिव। मेरी गल समझ गए? दूजा पहला एलीमेंट पॉजिटिव लेना, दूजा नैगेटिव लेना। -5 पहली नैगेटिव है, तो नैगेटिव नैगेटिव की हो गया पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव हो गया। हुण छड्डना की, एक तो आ छड्डना है, एक आ छड्डना है, 7 या 21 ते 1 दी 1 नाल कीती -1। देखो छड्डिया कि आ छड्डता, आ छड्डता, 7 दी 3 नाल गुणा 21, 1 दी 1 नाल कीती -1। हुण गल सौखी समझ आ गई ना। तीजा एलीमेंट आपां लेना पॉजिटिव 4 ले लिया, छड्डिया कि आ छड्डता, आ छड्डता, 7 दूनी 14 घटा 6 कम 6 आया कि 3 गुणा 18 घटा 2 16, 5 गुणा 21 घटा 1 20, 4 गुणा 14 घटा 6 8, 16 ती है 48, 20 5 100, 8 चौका 32, किते इहदा जोड़ के आजू 180। ये किहदे नाल एक्सपैंड कीता जी आपां? रो 1 नाल। किहदे नाल? एक होर मैथड आपां चलो आपां कॉलम 3 नाल एक्सपैंड करने आ, तुहानूं सारी गल क्लीयर हो जू। हुण किहदे नाल एक्सपैंड करदे? एक्सपैंड बाय कॉलम 3। कॉलम 3 किहड़ा ये है? हुण कॉलम 3 शुरू कित्थों ने? 4 तो। ये प्लस माइनस प्लस, तो 4 काहदा लेना? प्लस का लेना, प्लस का 4 ले लिया। छड्डांगे की, आ छड्डता, आ छड्डता, 7 दूनी 14 घटा 6, हुण आ प्लस का, तो 1 काहदा लेणांगे? माइनस का लेणांगे, माइनस का 1, क्यों कॉलम 3 नाल एक्सपैंड करते हैं। हुण एक वेले आ छड्डता, आ छड्डता, तो 3 दूनी 6, देखो आ छड्डिया, आ छड्डिया, 3 दूनी 6, -5 की 1 गुणा की -5, पर आप क्योंकि -1 का गुणा करके माइनस आऊ, 1 माइनस आप आपके पल्लों लाउणी है, तो ये की आजू? प्लस आ जाऊगा। ठीक है, ये दूजा आ गया। हुण आपां आ 3 छड्डांगे, 3 नाल गुणा, 6 ती 18, 7 5 माइनस का 35, -35 माइनस प्लस का 35 हो जू। आ तीजा आ गया। आ की है? 14 चो 6 कड्ढे 8, 8 चौका 32, 6 5 11, माइनस 1 नाल कीती माइनस का 11, ये आ गया 53, 35 प्लस 18 53, 32 माइनस 21, सॉरी 32 माइनस 11 21, ये आ गया 159 गुणा करके 159 प्लस 21 कितना आ गया 180। आंसर फिर कितना आ गया 180। मतलब ऐदां भी एक्सपैंड हो जाते हैं। कोई होर ढंग भी एक्सपैंड करता, आप तिन्ने रोज़ नाल एक्सपैंड कर सकते हैं, तिन्ने कॉलम नाल एक्सपैंड कर सकते हैं। एक होर ढंग है, हालांकि अपने वो सिलेबस च नहीं है NCERT अकॉर्डिंग, लेकिन आप वो ढंग भी विचारना है कि वो ढंग की है किसी को एक्सपैंड करने का। मान लो अपने को एक मैट्रिक्स इहो जी है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इनू कहते सारस रूल। सारस रूल की है
कि आप पहली रो के एलीमेंट देख लो A11 A12 A13 फिर रिपीट कर दो A11 A12 फिर दूसरी रो ते आ जाओ A21 A22 A23 फिर रिपीट हो गया A21 A22 तीजी रो A31 A32 A33 A31 A32 ये ना इदा एरोज बन जाते एक आ एरो बन गई एक आ एरो बन गई एक आ एरो बन गई ये करूगी की ਇਹਦੀ ਗੁਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਜੂਗਾ प्लस आ तिना की गुणा कर दो आ दूजा एलीमेंट बन जूगा प्लस आ तिना की गुणा कर दो आ तीजा एलीमेंट बन जू बन गए इन्होंने तिनों जोड़ दो हुण माइनस माइनस की करना है यदी गुणा ये पहला एलीमेंट बन गया यदी गुणा ये दूजा एलीमेंट बन गया यदी गुणा ये आ तीजा आ तीन एलीमेंट है बन गए इन्हों का जोड़ कर लो इन्हों जोड़ कर लो इधरले जोड़ चों आ जोड़ माइनस कर लो थोड़ा क्या आजू आंसर आजू उही एग्जाम्पल तो फिर चलते हैं जी एग्जाम्पल आप हुणी की सी आप यही दा डिटरमिनेंट दो तरीके पहला कढ़ लिया रो 3 नाल रो 1 नाल कढ़ लिया कॉलम 3 नाल कढ़ लिया हुण सार्स रूल नाल कढ़दे हैं 3 -5 4 3 -5 पहली रो होगी 7 6 1 7 6 दूजी रो होगी 1 2 3 1 2 आ तिना की गुणा कर दो 3 गुणा 6 गुणा 3 पहला एलीमेंट आ गया 5 गुणा 1 घटा 5 गुणा 1 गुणा 1 घटा 5 मैं पॉइंट पाना पॉइंट नहीं असल जो गुणा है इन्होंने तिना की गुणा होगी 4 गुणा 7 गुणा 2 माइनस ये सार्स रूल उदी लाना जो कहा जाए अदरवाइज आप जिमें एक्सपैंड करने उमें एक्सपैंड करना है हुण इधरले पासे आ जाओ 1 6 4 1 की गुणा 6 नाल गुणा 4 प्लस 2 गुणा 1 गुणा 3 3 गुणा 7 गुणा -5 सॉल्व करते हैं हम 3 3 9 6 54 आ माइनस का 5 आ गया 7 चौका 28 दूना 56 ठीक है क्वेश्चन इन्ना समझ आ गया माइनस 6 चौका 24 2 3 6 3 7 3 5 15 15 7 105 माइनस 105 54 जोड़ 56 प्लस 5 105 बन गए माइनस 24 6 30 30 चो माइनस 105 घटाए तो माइनस माइनस प्लस दे माइनस के 75 आ गए आ माइनस माइनस प्लस हो जाऊगा 105 प्लस 75 इस तरीके भी आंसर कितना आ गया 180 ये सी तुहाडा सार्स रूल हुण आपां कुछ एग्जाम्पल होर डिटरमिनेंट दियां लैंदे आ जिहदे नाल तुहाडी एक्सरसाइज बहुत ही वधिया ढंग नाल सॉल्व हो जूगी कहंदे एवैलूएट करो कॉस 15 डिग्री साइन 15 डिग्री साइन 75 डिग्री कॉस 75 डिग्री 2/2 की मैट्रिक्स है बहुत ईजी है कॉस 15 गुणा कॉस 75 माइनस साइन 15 साइन 75 कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी काहदा फार्मूला है याद करो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला है तो कॉस 15 डिग्री जोड़ 75 डिग्री कॉस 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री कितना होंदा है 0 होंदा है ये बहुत ईजी क्वेश्चन सी एक एग्जाम्पल होर लैंदे हैं
दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट दैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। दोनों पासे वैल्यूएट कर लो, लैफ्ट हैंड साइड वैल्यूएट कर लो। पहला 3 चौके 12x माइनस 7 दूनी माइनस 14, एक माइनस आप लानी, एक गुणा करके आ गई 12x माइनस माइनस प्लस 14, ये लैफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड की आऊगी, राइट हैंड साइड में जो एक्सपेंड करोगे 8 चौका 32, 7 छिका 42, 32 चो 42 कटे बैलेंस का 10। लैफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड की ने इक्वल ने क्योंकि दिते हुए ने। इट मीन 12x प्लस 14 इज इक्वल टू माइनस का 10। 14 उधर आके माइनस हो गए तो माइनस के 24। एक्स की आ गया माइनस 24 नूं आपां 12 नाल की करता डिवाइड करता तो एक्स की आ गया माइनस का 2 आ गया। बहुत ईजी क्वेश्चन सी। एक लास्ट एग्जाम्पल लवांगे, इस तो बाद आप अगली गल करते हैं। इफ ए एंड बी आर टू स्केयर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर 3, ए तो बी दो स्केयर मैट्रिक्स ने जिन्होंने ऑर्डर सेम है 3 का मतलब 3/3 दी मैट्रिसिस ने। ए का डिटर्मीनेंट अपन गिवन है कि 2 है। ए तो बी का प्रोडक्ट अपन 2i की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो बराबर है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मीनेंट ऑफ बी। अपन दिता की है, अपन दिता ए। दोनों पास डिटर्मीनेंट ले लो, ए का भी डिटर्मीनेंट ले लो, ਇਹਦਾ भी डिटर्मीनेंट ले लो। ए इंटू बी का डिटर्मीनेंट की होगा, ए का डिटर्मीनेंट इंटू बी का डिटर्मीनेंट, ये अगे जाके तुहानूं पता लग जू। ए तो बी का जो प्रोडक्ट है दोनों का साझा डिटर्मीनेंट इदा लिखा जा सकता है। 2 एक कॉन्सटेंट वैल्यू बाहर आ जूगी, डिटर्मीनेंट किधर है जू आई का। ए का डिटर्मीनेंट अपने को 2 अपन गिवन है, बी का डिटर्मीनेंट आप पता करना है। 2 गुणा आई का डिटर्मीनेंट, आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, चाहे 1/1 दी है, चाहे 2/2 दी है, चाहे 3/3 दी है, चाहे 4/4 दी है। कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मीनेंट कितना होगा 1 होगा, कट के देख लो। तो 2 इंटू डिटर्मीनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 2, 2 उधर आके डिवाइड हो गया, 2 डिवाइड बाई 2 इज 1, तो बी का डिटर्मीनेंट किया गया 1 आ गया। उम्मीद करदा कि तुहानूं इत्थे तक गल समझ आई होगी। छेती ही मैं अगली एक्सरसाइज नाल रिलेटेड वीडियोज़ लैके आऊँगा। पहली एक्सरसाइज तुहाडी बहुत ही ईजली सॉल्व हो जूगी इस वीडियो नाल। मेरे नाल बने रहो। जिन्हां ने मैट्रिक्स दीयां पुरानियां वीडियोज़ नहीं देखियां वो देखो, जिन्हां ने टेस्ट नहीं दिता वो टेस्ट दिओ। जल्द ही नैक्सट वीडियो लैके तुहाडे दरम्यान हाज़र होवांगा। धन्नवाद।